Welcome to VLearn. Today we cover the second session of DHTML. Topics to be covered. इसमें हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे. JavaScript. First of all, in JavaScript alone, JavaScript and HTML DOM, JavaScript and HTML events, JavaScript and CSS. JavaScript alone. In JavaScript, the statement document.write is used to write output to a web page. JavaScript में जो स्टेटमेंट होती है document.write, उसके थ्रू हम किसी भी वेब पेज पर कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं. मीन्स हम पेज पर कुछ भी लिख सकते हैं document.write के थ्रू, जो हम प्रीवियस स्लाइड्स में करके देख भी चुके हैं. Example. The following example uses JavaScript to display the current date and type on a page. Here is some example that show the current date and time of the system on a web page. Here, as we know, to start an HTML tag, body tag. After that, to use JavaScript, we use script tag, and scripts tag attribute type is equal to text JavaScript. Document.write to write anything on a web page. Date is used to output date and time on a page. Closing of script tag, closing of body tag, after that closing of HTML tag. Let's run this example. First of all, open the notepad. Let's change the font size and word wrap. To start HTML, we use HTML tag. After that, head tag. If you want to give title, use title tag. TITE, and हम इसको टाइटल देते हैं डेट एंड टाइम. हम टाइटल कुछ भी दे सकते हैं. क्लोजिंग ऑफ टाइटल टैग. क्लोजिंग ऑफ हेड टैग. स्टार्ट ऑफ बॉडी टैग. आफ्टर दैट we start JavaScript, means script tag and attribute of script tag type is equal to text oblique JavaScript. Now use document.write and we use date method, semicolon, and closing of script tag. After that, closing of body tag, and at the last, closing of HTML tag. Now save the file. Save. We can save it anywhere. Let's save it with date.html name. Save all document with .html extension. Save. Now
open that file to see the output. New folder to date. Double click on it. Allow the JavaScript. Yes. There is some error. Document is not defined. I think spelling of document is not correct. DOCUMENT. Now again save it. File, save. Now refresh the page. F5 or this symbol. This show the current date and time of the system. तो ये जावास्क्रिप्ट थी जिसके थ्रू हमने सिस्टम से करंट डेट एंड टाइम वेब पेज पर शो कराया. नाउ कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स. नेक्स्ट, JavaScript and HTML DOM. The HTML DOM is a standard object model for HTML, a standard programming interface for HTML, platform and language independent. Means HTML DOM एक ऑब्जेक्ट मॉडल है HTML के लिए. मीन्स हम इसमें ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं. इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मीन्स बने बनाए ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं. जैसे कि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में डेट का यूज़ किया. आ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML. ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस है. मीन्स एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है HTML डॉक्यूमेंट में. प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म मीन्स किसी भी OS पे चला सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के साथ यूज़ कर सकते हैं. ये सब लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं. द HTML DOM defines the object and properties of all HTML elements and the method interface to access them. HTML DOM के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स और उसके प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं और मेथड्स को भी यूज़ करते हैं. मोस्टली इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जिनका हम बस यूज़ करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. JavaScript and HTML DOM. A JavaScript can also be used to change the content or attributes of HTML elements. हम JavaScript का यूज़ किसी भी HTML एलिमेंट्स के कंटेंट और उसके एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं. जैसे कि मुझे किसी एलिमेंट का कलर चेंज करना हो, उसका स्टाइल चेंज करना हो, उसकी विजिबिलिटी चेंज करना हो, वो सब मैं JavaScript के थ्रू ईजिली कर सकता हूँ. टू चेंज द कंटेंट ऑफ एन HTML एलिमेंट. अगर हमें किसी एलिमेंट के कंटेंट चेंज करने हो तो हम सिंपल सा एक गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML यूज़ करके कर सकते हैं. ये एक बना बनाया मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट के कंटेंट चेंज कर सकते हैं. एंड फॉर टू चेंज द एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट, और किसी एलिमेंट के एट्रीब्यूट चेंज करने हो तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट एट्रीब्यूट इज इक्वल टू न्यू वैल्यू के थ्रू उसके एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट करंट पेज को रेफर करता है. गेट एलिमेंट बाय ID एक मेथड है जिससे हम किसी भी एलिमेंट की ID गेट कर सकते हैं. मीन्स हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेट एग्जीक्यूट दिस. अगेन वी ओपन आवर HTML फाइल और हम इसी में चेंज करके देखते हैं.
हम डेट एंड टाइम चेंज करके लिख देते हैं डोम। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हम एक लेबल बनाते हैं लेबल टैग से LABL। इसको एक आईडी देते हैं जिससे कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें L, और कुछ भी लिख देते हैं दिस इज अ लेबल। क्लोजिंग ऑफ लेबल टैग। एंड हम एक फंक्शन बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। फंक्शन बनाने के लिए हम टाइप करते हैं फंक्शन सो, और इसमें हम इस लेबल के कंटेंट चेंज करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड वी गिव L, जो हमने नीचे लेबल की आईडी दी है, तो इससे लेबल आइडेंटिफाई हो जाएगा। आफ्टर दैट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू न्यू कंटेंट। हम कुछ भी दे सकते हैं, हम लिख देते हैं दिस इज these are new contents। हम इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं एक बटन के क्लिक इवेंट पर। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन ऑन क्लिक is equal to function name। सो वैल्यू दे देते हैं बटन को चेंज। नाउ फाइल को हम सेव करते हैं, फाइल सेव, ओपन करते हैं, फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने उसी फाइल में चेंजेस किए हैं, इसलिए मुझे फाइल को न्यू नेम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम न्यू फाइल बनाकर उसमें भी सेव करके दोबारा से फाइल को ओपन कर सकते हैं। रिफ्रेश द पेज, देयर इज सम एरर, लेबल सिंग ऑफ लेबल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, चेंज, क्लोजिंग ऑफ स्क्रिप्ट टैग। हमने एक मिस्टेक कर दी थी, हमने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज नहीं किया था। फिर से फाइल सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही ये मेरा एक लेबल है जिस पे लिखा हुआ है दिस इज अ लेबल। ये एक बटन है जो हमने इनपुट टाइप टैग से बनाया है जिस पे चेंज लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो इसके कंटेंट चेंज हो जाएंगे। चेक करते हैं, इसके कंटेंट चेंज हो गए, इसके कंटेंट हो गए दीज आर न्यू कंटेंट्स। मीन्स हमने एक लेबल के कंटेंट चेंज करके देख लिए थ्रू इनर HTML। ऐसे ही हम इसके कलर या एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकते हैं। हम इसका एट्रीब्यूट भी चेंज करके देख लेते हैं। एक और फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम इसके एट्रीब्यूट चेंज करते हैं। हम कोई कुछ भी दे सकते हैं फंक्शन का नाम। हम
फंक्शन नेम एट देते हैं और इसमें हम फिर से सबसे पहले गेट करते हैं एलिमेंट को, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इससे हमें लेबल की आईडी मिल जाएगी। डॉट एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट हम इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं, इज इक्वल टू रेड। कलर नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक और बटन बना लेते हैं जिस पे हम सेकंड फंक्शन को कॉल करा लेंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, ऑन क्लिक सेकंड फंक्शन नेम एंड वैल्यू इज चेंज एट्रीब्यूट। सेव करते हैं फाइल को, फाइल सेव एंड रिफ्रेश द पेज। अब जैसे ही हम चेंज एट्रीब्यूट बटन पे क्लिक करेंगे तो लेबल के एट्रीब्यूट कलर चेंज हो जाएगा। चेक करते हैं, एरर ऑन दिस पेज, चेक कर लेते हैं क्या एरर है। रेड इज अनडिफाइंड, मीन्स हमें एट्रीब्यूट की वैल्यू डबल कोट्स में देनी होगी। फाइल सेव करते हैं, फाइल सेव, फिर से रिफ्रेश करते हैं। ऐसे एरर्स भी आ सकते हैं जब हम कोई HTML जावास्क्रिप्ट मीन्स DHTML में वर्क करते हैं। रिफ्रेश द पेज एंड अगेन वी क्लिक द चेंज एट्रीब्यूट। अभी भी हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, फंक्शन एट हम p टैग यूज करके देखते हैं। p उसको एक आईडी देते हैं, आईडी इज इक्वल टू p1। इसमें हम लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ, आफ्टर दैट क्लोजिंग ऑफ पैराग्राफ टैग। हम इसके कलर चेक मीन्स चेंज करने की ट्राई करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी p1, इससे पैराग्राफ की आईडी मिल जाएगी, उसका कलर रेड हो जाएगा। चेक करते हैं हम, फिर से फाइल सेव करते हैं, फाइल सेव और कंट्रोल एस, refresh the page and change attribute। कलर वर्क नहीं कर रहा है इस ब्राउजर में। document dot get element by id p1 dot color। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्राउज़र किसी एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे कि यहाँ पर एक एरर आ रही है कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इस टैग को, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी p1 डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। तो हम इसको
स्किप करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। ओपन द स्लाइड। Next is JavaScript and HTML events. A JavaScript can also be executed when an event occurs, like when a user clicks on a HTML element. JavaScript हम तब भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब कोई इवेंट अकर होता है, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में देखा। हमने बटन पे क्लिक किया, एक इवेंट परफॉर्म हुआ, ऑन क्लिक इवेंट, और उस पे हमने लेबल के कंटेंट चेंज कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, टू एग्जीक्यूट कोड व्हेन अ यूजर क्लिक्स ऑन अ एलिमेंट यूज द फॉलोइंग इवेंट एट्रीब्यूट ऑन क्लिक इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मीन्स कोई भी फंक्शन नेम जिसको आपको एग्जीक्यूट कराना है। एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि अ माउस क्लिक इवेंट, अ वेब पेज और एंड इमेज लोडिंग इवेंट। माउस के क्लिक करने पे इवेंट जो होते हैं, पेज के लोड होने या इमेज के लोड होने पे जो इवेंट्स होते हैं। माउस ओवर अ हॉटस्पॉट ऑन द वेब पेज, माउस के मूव कराने पर कोई इवेंट परफॉर्म होते हैं, वो इवेंट्स। सेलेक्टिंग एन इनपुट फील्ड्स इन एन HTML फॉर्म, किसी इनपुट फील्ड्स के सेलेक्ट करने पर जो इवेंट्स होते हैं। सबमिटिंग एन HTML फॉर्म्स, फॉर्म को सबमिट करने पे इवेंट्स होते हैं। की के प्रेस होने पे इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन लोड एंड ऑन अनलोड इवेंट्स। ऑन द ऑन लोड इवेंट is often used to check the visitor's browser type and browser version and load the proper version of the web page based on the information. onload event का हम यूज़ बेसिकली किसी ब्राउज़र की टाइप और उसके वर्जन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज़ करते हैं। both the onload and on unload events are also often used to deal with cookies that should be set when a user enters or leaves a page. हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऑनलोड इवेंट का यूज़ करते हुए कुकीज़ को भी मेंटेन कर सकते हैं, जो कि सेशन मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे ही कोई यूज़र लॉगिन करता है, हम उसकी कुकीज़ उसके सिस्टम पे सेव कर लेते हैं, जो कि फर्दर हमें हेल्प करती हैं यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए। For example, you could have a pop-up asking for the user's name upon his first arrival to your page. जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कोई यूज़र एंटर करता है किसी वेब पेज पर, तो हम एक पॉपअप बॉक्स से उसका यूज़र नेम एंटर करा सकते हैं और नेक्स्ट टाइम हम उसको वेलकम के साथ उसका नेम शो करा सकते हैं। द नेम इज़ देन स्टोर्ड इन अ कुकी, उसको हम उसके यूज़र नेम को कुकीज़ में स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम द विजिटर्स अराइव एट योर पेज, यू कुड हैव अनदर पॉपअप सेइंग समथिंग लाइक वेलकम जॉन डोई, मीन्स हम उसको नेक्स्ट टाइम वेलकम कर सकते हैं। ऑन फोकस, ऑन ब्लर एंड ऑन चेंज इवेंट्स। On focus, on blur and on change events are often used in combination with validation of form fields. इन events का हम यूज़ किसी भी वेब पेज को वैलिडेशन प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। The check mail function will be called whenever the user changes the content of the field. जैसे कि नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, चेक इवेंट एक फंक्शन बनाया हुआ है एक टेक्स्ट फील्ड पे जिसका साइज 30 है और उसकी आईडी ईमेल है, और जैसे ही कोई यूज़र उसमें कंटेंट टाइप करेगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ऑन सबमिट इवेंट। द ऑन सबमिट इवेंट इज यूज्ड टू वैलिडेट ऑल फॉर्म फील्ड्स बिफोर सबमिटिंग इट। ऑन सबमिट इवेंट तब कॉल होता है जब कोई हम फॉर्म सबमिट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, द चेक फॉर्म फंक्शन विल बी कॉल्ड व्हेन द यूज़र क्लिक द सबमिट बटन इन द फॉर्म। जैसे ही
कोई यूज़र सबमिट बटन को क्लिक करेगा तो चेक फॉर्म एक हमने फंक्शन बनाया है वो कॉल हो जाएगा और उसमें हम कुछ भी इवेंट्स परफॉर्म करा सकते हैं। इफ़ द फील्ड वैल्यूज़ आर नॉट एक्सेप्टेड द सबमिट शुड बी कैंसिल्ड। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया है चेक फॉर्म जो रिटर्न करेगा आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। इफ इट रिटर्न्स ट्रू द फॉर्म विल बी सबमिटेड, अदरवाइज द सबमिट विल बी कैंसिल्ड। या इफ अगर वो फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है तो फॉर्म सबमिट हो गया है, नहीं तो वो फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। फॉर्म एक फॉर्म टैग है जिसके थ्रू हम फॉर्म डिजाइन करते हैं। मेथड दो टाइप के होते हैं, गेट या पोस्ट। गेट से हमारा सारा मीन्स सभी फील्ड्स का इनपुट ब्राउज़र के एड्रेस फील्ड में विजिबल होता है, नहीं तो वो विजिबल नहीं होता है पोस्ट के थ्रू। एक्शन कोई भी पेज नेम जिस पे सबमिट पे क्लिक करने पे हमें डाटा सेंड करना है। ऑन सबमिट इज इक्वल टू रिटर्न check form. Check form is the function that we want to call. On mouse over and on mouse out. The on mouse over event can be used to trigger a function when the user mouse over an HTML element. On mouse over event तब अकर होता है जब हम किसी माउस को मूव कराते हैं किसी भी एलिमेंट पे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है HTML बॉडी h1 ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। जैसे ही हम हेडिंग 1 पे माउस को मूव करेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। ऑन माउस आउट इज इक्वल टू स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लैक। ऑन माउस आउट फंक्शन इवेंट तब ओकर होता है जब हम माउस को किसी भी एलिमेंट से आउट मीन्स उस एलिमेंट से दूर लेकर जाते हैं। चेक कर लेते हैं, इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा हो। HTML स्टार्ट करने के लिए HTML हेड पार्ट में हम इसको हेडिंग दे देते हैं। टाइटल टैग ऑन माउस ओवर एंड on mouse out events, closing of title tag, closing of head tag, start of body tag, h1 on mouse over is equal to style dot color इज इक्वल टू रेड। इसको हम सिंगल कोट में यूज़ करते हैं और सेकंड इवेंट हम यूज़ करते हैं ऑन माउस आउट इज इक्वल टू स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लू। जैसे ही हम इस हेडिंग पर माउस लेकर जाएंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा और जैसे ही उससे हम माउस हटाएंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। चेक करते हैं, क्लोजिंग ऑफ h1 टैग हम लिखते हैं ऑन माउस एंड ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट events, closing of h1 tag।
क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग, क्लोजिंग ऑफ HTML टैग। सेव करते हैं फाइल, फाइल सेव, इसको हम दे देते हैं नेम इवेंट डॉट HTML। हम कोई भी नेम दे सकते हैं बट एक्सटेंशन HTML होनी मस्ट है। इवेंट डॉट HTML सेव, ओपन करते हैं फाइल, डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, अलो ब्लॉक कंटेंट्स, यस। अब जैसे ही मैं इस पर माउस लेकर जाता हूँ इसका कलर रेड हो जाएगा, मीन्स मेरा ऑन माउस ओवर इवेंट वर्क कर रहा है। और जैसे ही मैं माउस को इस हेडिंग 1 से आउट करूँगा तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, मीन्स ये ऑन माउस आउट इवेंट वर्क कर रहा है। नाउ कंटिन्यू विथ स्लाइड्स अगेन। जावास्क्रिप्ट एंड CSS। हम जावास्क्रिप्ट के साथ CSS भी यूज कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट कैन ऑल्सो चेंज द स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट्स। हम किसी भी एलिमेंट्स का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं वाया जावास्क्रिप्ट। जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है, टू चेंज द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट्स वी यूज document डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू न्यू। तो इससे हम उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करके देख लेते हैं। हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। HTML हेड, टाइटल हम दे देते हैं जावास्क्रिप्ट विद CSS। closing of head tag, start of body tag. Before that we make a function, let make function script tag type is equal to javascript text oblique javascript function so फंक्शन नेम हम देते हैं चेंज। हम नीचे एक h1 डिफाइन कर देते हैं, इसकी ID दे देते हैं ID हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं h1 दे रहा हूँ। इसमें हम लिख देते हैं हेडिंग 1, क्लोजिंग ऑफ h1, क्लोजिंग ऑफ इसकी ID हम सबसे पहले इस फंक्शन में एक ID गेट कराते हैं h1 की, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ब्रैकेट में जो ID हमें गेट करानी है वो h1 डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, हम कलर दे देते हैं इज इक्वल टू रेड,
सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों में दे सकते हैं। क्लोजिंग ऑफ स्क्रिप्ट टैग, एक बटन बनाते हैं जिस पर इसको कॉल करा लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं, कैप्शन जो भी हम बटन पे देखना चाहते हैं। मैं CSS देता हूँ। ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन नेम, जो हमें कॉल कराना है हम फंक्शन नेम चेंज देते हैं जो हमने ऑलरेडी बना लिया है। एंड क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग, and at the last closing of HTML। फाइल को सेव करते हैं। फाइल सेव, इसको हम नेम दे देते हैं css.html। ओपन करते हैं फाइल डबल क्लिक करके। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो हेडिंग 1 का कलर रेड हो जाएगा। चेक करते हैं तो इसका कलर रेड हो गया। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, इसके स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं CSS का यूज और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। Now here are two questions for you. Question 1, explain JavaScript with example. Basically JavaScript is a technology that is used for validations to change the content and styles of elements. Example हम previous slides में करके देख चुके हैं। Question 2, explain on mouse over event with suitable example. On mouse over event को explain कीजिए। On mouse over event is occurred when a mouse is over on an element। जब भी हम किसी माउस को, पॉइंटर को किसी भी एलिमेंट पर मूव कराते हैं तो हमारा ऑन माउस ओवर इवेंट अकर होता है। जैसा कि अभी हमने एग्जीक्यूट करा के देखा, हेडिंग 1 पे माउस मूव कराते ही, माउस ओवर कराते ही उसका कलर रेड सेट कर दिया था। दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी कवर नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। थैंक यू।